मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों को बताइए। यस सर। ठीक है। नोट करिएगा मेरिट्स ऑफ Mendeleev's merits of Mendeleev's classification, merits of Mendeleev's classification of elements. Merits of Mendeleev's classification of elements. नोट करेंगे पहला मेरिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस। तो पहला मेरिट आप नोट करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड। मेंडलीव्स फर्स्ट है। Mendeleev's periodic law predicted the existence of some elements, predicted the existence Mendeleev's periodic law predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. That had not been discovered at that time. That had not been discovered at that time. तो मेंडलीव ने क्या करा था, मेंडलीव ने ये पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि उस टाइम कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हो पाए थे, लेकिन मेंडलीव ने पहले से ही प्रेडिक्ट करा था कि आगे कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। उसके लिए उसने स्पेस छोड़ा था, अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ा था। लीजिएगा, मेंडलीव लेफ्ट प्रॉपर गैप्स फॉर Mendeleev left proper gap. Mendeleev left proper gap for the then undiscovered elements. Left proper gap for the then Mendeleev left proper gap for the then undiscovered elements for the then undiscovered elements like गैलियम ब्रैकेट में लिखे Ga, कॉमा स्कैंडियम, scandium Sc, and germanium Ge. And germanium Ge. Gallium, scandium, and germanium Ge. When these elements were discovered, when these elements were discovered later on, comma, when these elements were discovered later on, comma, were placed in those gaps. They were placed in those gaps
they were placed in those gaps without disturbing the existing elements. इसको अंडरलाइन कर देना, पहली लाइन जो है, Mendeleev's periodic law predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही था भाई, ना तो डॉबरिनर ने ये बताया कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो पाएगा, न्यूलैंड ने तो ये तक कह दिया था कि अभी जितने एलिमेंट्स हैं 56 एलिमेंट्स हैं, इतने ही रहेंगे और आगे कुछ डिस्कवर भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसने बोला कि हाँ, कुछ नए भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगाते हुए पहले से ही उसने कुछ स्पेस खाली छोड़ा था अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो जब वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए तो वो सारे एलिमेंट्स वहाँ पर फिट हो गए, उस जगह पर फिट हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका मेरिट था, यानी कि नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज था वो लिखें। सेकंड है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज Mendeleev's periodic table could predict the properties of several elements on the basis predict the properties of several elements on the basis of their positions in the periodic table, on the basis of their positions in the periodic table. On the basis of their positions in the periodic table. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये था कि भाई पीरियोडिक टेबल में जिस पोजीशन पर, जहाँ पर वो एलिमेंट्स हैं प्लेस्ड हैं, तो उसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, किस तरीके की वो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे द प्रॉपर्टीज the properties of the then undiscovered elements of the then undiscovered elements like gallium, scandium, and germanium were predicted in this way. Were predicted in this way and were found to be almost the same as actual properties, almost the same as actual properties
almost the same as actual properties when these elements were discovered later on. When these elements were discovered later on. Discovered later on. उसके बाद थर्ड जो इसका एडवांटेज था वो ये था कि जैसे हमने डॉबरिना ट्रायड देखा, जैसे हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, तो वहाँ पर कहीं पर भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये जो नोबल गैसेज हैं ये हमको कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन मेंडलीव ने इस चीज़ का पहले से प्रेडिक्शन कर लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था। तो थर्ड देखिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट Mendel's periodic table could accommodate noble gases when they were discovered, could accommodate Mendel's periodic table could accommodate noble gases when they were discovered. Could accommodate noble gases when they were discovered. इसमें इतना ही। उसके बाद ये इसकी तीन जो है मेरिट्स हो गई। तीन मेरिट्स क्या है? पहली मेरिट आपकी है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो मेंडलीव ने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ एलिमेंट्स आगे भी फ्यूचर में ही डिस्कवर हो सकते हैं, तो उसने उनके लिए खाली स्पेस छोड़ दिया था। और खाली स्पेस वो छोड़ा था जहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इधर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको अगर ये सारे के सारे सेम पीरियड में रखे हुए हैं तो इनसे ये समझ में आता है कि शायद इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। और ऐसा ही होता है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों लाइन से लिखे रहते हैं। किस में लिखे रहते हैं? एक पीरियड में लिखे रहते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि ये मेटल होते हैं, तीनों ही एलिमेंट्स मेटल होते हैं। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, तो वो भी जो है वो एक ही ग्रुप में होते हैं। तो ऐसा क्यों है? उसका रीज़न ये है कि वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। तो इसी तरह से उसने स्पेस ही ऐसा छोड़ा था कि गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम के लिए ऐसा स्पेस छोड़ा था कि वहाँ पर अगर वो लेटर ऑन वो डिस्कवर होंगे भी तो वो सेम प्रॉपर्टी में फिट बैठ जाएंगे कि भाई हमने जिस जगह पर इसका स्पेस छोड़ा था, ऐसा नहीं है कि हमने जैसे इधर जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम जो है वो एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि अगर उसको नॉर्मली चेक करा जाए तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो फिर वही इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी प्लास्टिक शीट की बात करने लगूँ, प्लास्टिक शीट का आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दें वो प्लास्टिक पिघल जाएगी, लेकिन वो कैसे भी करके करंट को कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगी। सेम विद रबर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, रबर कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकता, रबर इंसुलेटर ही रहेगा। लेकिन जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं तो नॉर्मली तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कंडक्शन होना शुरू हो जाता है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए मेजरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, तो वो डिवाइसेस में ज़्यादातर सिलिकॉन या जर्मेनियम का ही सेमीकंडक्टर यूज़ करा जाता है, ठीक है। इस वजह से कि ऐसा ना हो कि हम टीवी को थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ करें और थोड़ी देर बाद कोई छोटा बच्चा घर में आए और उसको टच करे तो उसमें कुछ ना कुछ करंट लीक हो जाए, तो उसमें करंट होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप टीवी को ऑफ करेंगे तो 1 मिनट या 2 मिनट के बाद वो नॉर्मल अपने टेम्परेचर पर आ जाएगा। और फिर आप खुले हुए टीवी के अंदर भी अगर हाथ डाल देंगे ना गलती से, उसका प्लास्टिक का जो कवर है
वो रिमूव हो गया, उसके अंदर भी आप हाथ डाल देंगे तो करंट नहीं लगेगा। तो इस वजह से जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं उसमें ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होता है। तो अब जैसे ये जर्मेनियम की बात हम कर रहे हैं, तो जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम के लिए वही वाला स्पेस खाली छोड़ा गया था पहले से ही, जहाँ पर वो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हों, वही वाला स्पेस। तो यही चीज़ है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो उसने जगह छोड़ी थी कि जहाँ जहाँ पर मेंडलीव ने जगह छोड़ दी, तो उसने ये बता दिया था कि मैं ये वाला स्पेस छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब जो आगे फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा वो एक मेटल होगा, जो आगे एलिमेंट डिस्कवर होगा वो एक नॉन मेटल होगा, या फिर वो एक सेमीकंडक्टर होगा। तो इस तरीके से उसने प्रेडिक्ट करा था, तो ये उसकी एडवांटेज थी। उसने प्रॉपर्टीज़ तक प्रेडिक्ट कर ली थी कि ये प्रॉपर्टीज़ वाले कुछ एलिमेंट्स फ्यूचर में मिल सकते हैं, तो वो भी सही निकला कुछ समय बाद। और फिर उसने ये कहा कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे जो कभी किसी के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव कौन होते हैं? नोबल गैसेस। तो फ्यूचर में बहुत समय बाद नोबल गैसेस भी डिस्कवर हो गई थी, ठीक है। तो ये तीन तो एडवांटेजेस हो गई। फिर इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, तो डिसएडवांटेजेस देखते हैं। नोट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Limitations of Mendeleev's classification of elements. तो पहला है the position of isotopes could not be explained. For example, the element chlorine has two isotopes. The element chlorine has two isotopes, Cl35 एंड Cl37। तो देखिए Cl क्या होता है, क्लोरीन का ये सिंबल है Cl, और 35 का मतलब क्या है, आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट होता है, ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इनको बोल देते हैं हम आइसोटोप्स। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, लेकिन क्लोरीन दो अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, एक तो 35 एटॉमिक मास वाली फॉर्म और एक 37 एटॉमिक मास वाली फॉर्म। तो मेंडलीव ने क्या कहा था कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उनको अरेंज किया जाना चाहिए। तो ये मेंडलीव ने बोला था, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उसने अरेंज कर भी दिया। तो लेकिन फ्यूचर में जाकर पता चलता है कि नहीं, क्लोरीन के तो दो आइसोटोप्स हैं, तो एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 है, दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास 37 है। तो क्या उनको एक जगह रखें क्योंकि दोनों क्लोरीन है, ठीक है, और क्या फिर उनको अलग अलग रखें, और अगर अलग अलग रखें तो फिर जो आगे वाला एलिमेंट है उसकी पोजीशन किस तरीके से डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी, तो ये चीज़ मेंडलीव नहीं बता पाए। तो आप लिखें द एलिमेंट्स क्लोरीन हैज़ टू आइसोटोप Cl35 एंड Cl37
having atomic masses of 35 and 37 respectively, having atomic masses of 35 and 37 respectively, having atomic masses of 35 and 37 respectively, full stop. The placing of these isotopes the placing of these isotopes in the same group of the periodic table these isotopes in the same group of the periodic table could not be explained by Mendeleev. Could not be explained by Mendeleev. सेकेंड इसका ड्रॉबैक देखें, wrong order of atomic masses of some elements could not be explained. Wrong order of atomic masses of some elements could not be explained. Could not be explained. तो कुछ एलिमेंट्स थे उनका जो एटॉमिक मासेस थे उनका जो ऑर्डर था वही गलत था। जैसे मेंडलीव ने बताया कि भाई पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस हमें उनको अरेंज करना है कि जो एटॉमिक मासेस हैं वो बढ़ते हुए ऑर्डर में होने चाहिए। लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे थे उनका जो ऑर्डर था वो बढ़ता हुआ नहीं था, तो वो जो रॉन्ग ऑर्डर था उस रॉन्ग ऑर्डर को मेंडलीव ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका भी एग्जाम्पल नोट करें। जैसे यहाँ तो आइसोटोप्स वाला हमने क्या लिया एग्जांपल, Cl35 और Cl37। तो इनको अगर सेम ग्रुप में रख दिया तो सेम ग्रुप में रखा तो उनका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास तो बढ़ता हुआ होना चाहिए और आपने उनको सेम ग्रुप में डाल दिया तो उस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर नहीं पाया। सेकंड है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। रॉन्ग ऑर्डर का एक एग्जांपल देखते हैं। लिखिएगा, when put in the correct group on the basis of chemical properties, for example, पहले लिखें for example, when put in the correct group on the basis of correct group on the basis of its chemical properties, when put in the correct group on the basis of its chemical properties, comma, the element cobalt have higher atomic mass of 58.9
58.9 comes first and nickel element with slightly lower atomic mass of 58.7. Nickel element with slightly lower atomic mass of 58.7 comes later. ठीक है, तो ये वाला जो था इस सिचुएशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पर क्या है कि भाई आयरन कोबाल्ट निकल, तो उनको जो उसने अरेंज करा था तो आयरन लिखा, फिर कोबाल्ट लिखा Fe, फिर CO, फिर Na, तो ये तो गलत हो गया ना ऑर्डर, क्योंकि कोबाल्ट पहले लिख दिया आपने और Na बाद में लिख दिया। और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकल का एटॉमिक मास 58.7 है। तो पहले आपने ज़्यादा वाला एटॉमिक मास लिख दिया, फिर कम वाला लिख दिया, जबकि पहले ही आपने कहा था कि हमारा तो क्लासिफिकेशन इस चीज़ पर बेस्ड है कि हमारे जो एटॉमिक मासेस हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं रहा, समझ गए कि नहीं? तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो यहाँ पर भी ये भी उसका एक ड्रॉबैक था। तो पहला ड्रॉबैक ये कि जो आइसोटोप्स थे, आइसोटोप्स की पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसमें आप एग्जांपल में लिख देना Cl35 और Cl37, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि एटॉमिक मासेस का कई जगह रॉन्ग ऑर्डर देखने को मिला, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है जो कि बाद में आना चाहिए, और निकल का 58.7 है जो कि पहले आना चाहिए, क्योंकि वो कम है तो कम वाला पहले और बड़े वाला बाद में आना चाहिए, लेकिन उल्टा था, तो वो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद थर्ड देखिएगा। सर तो वैसे ठीक नहीं कर सकते? हाँ, ठीक नहीं कर सकते थे वो उसको अगर ठीक करता था तो ठीक करते ही फिर वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ गड़बड़ हो जाती थी कि भाई आपने फिर सेम प्रॉपर्टी वाले पीरियड में क्यों नहीं डाला उसको। मतलब जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, फिर इधर लिथियम है और फिर इधर सोडियम है। तो ये सारे के सारे जो हैं इनको सबको एक ही वर्टिकल जो कैटेगरीज होती हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। तो इसको सेम ग्रुप में जो डाल रखा है तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई यहाँ पर तो सोडियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम है। मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि यहाँ सोडियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम है। मान लीजिए कि इसका एटॉमिक मास कम है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है और इसका कम है, तो हम ये कहेंगे कम वाला पहले आना चाहिए। तो अगर मान लो हम मैग्नीशियम को पहले लिख दें और सोडियम को बाद में लिख दें तो एक चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर जो ये शुरुआत वाला है, जो मेटल वाला ग्रुप है, मेटल वाले ग्रुप में फिर मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने अगर एक क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई करने की वो कोशिश करता था तो दूसरा क्राइटेरिया डिससेटिस्फाई हो जाता था। तो ये चीज़ थी। तो इसीलिए शुरुआत में लिखा व्हेन पुट इन द करेक्ट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कि केमिकल प्रॉपर्टीज के भाई मेटल मुझे एक ही जगह डालने हैं सारे के सारे, नॉन मेटल मुझे सारे के सारे एक ही जगह डालने हैं। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज वाली जो कंडीशंस थी उनको मानते हुए अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करता था तो आयरन पहले आता था, कोबाल्ट बाद में आता था, निकल बिल्कुल बाद में आता था। तो कोबाल्ट का जबकि अब केमिकल प्रॉपर्टीज वाले क्राइटेरिया के हिसाब से सेट कर दिया, ठीक है, तो आयरन पहले आ गया, कोबाल्ट बाद में आ गया, निकल बाद में आ गया। लेकिन फिर जो एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक मासेस वाला क्राइटेरिया डिससेटिस्फाई हो गया कि भाई 58.9 है पहले और फिर 58.7, तो ये तो गलत हो गया होगा। तो एक चीज़ को सेटिस्फाई करते थे तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाती थी। तो कुछ ना कुछ एनोमैलीज, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस इसमें भी थी ही। तो ये आ गया, ये वाला समझ में आ गई दोनों लिमिटेशन, ठीक है। तीसरी लिमिटेशन देखेंगे, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, और आप लोग ऑफलाइन आना शुरू करो भाई। ये बीच बीच में जो है ऑनलाइन का पता नहीं क्या, विदिशा, शगुन, प्राजक्ता, पावनी, मोदित, इशिता, सभी लोग आए हैं आप लोग ऑफलाइन। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा,
थर्ड है अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. Correct position could not be assigned to hydrogen in the periodic table. हाइड्रोजन को कोई करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर पाया पीरियोडिक टेबल में. इसके बारे में डिटेल में कोई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है मुझसे. ठीक है, तो ये तीन थे जी इसके ड्रॉबैक्स. ठीक, उसके बाद जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बेस पर एक क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, 2 मिनट वेट करिए बस, मैं अभी आ रहा हूँ. चलिए जी, एक क्वेश्चन नोट करेंगे. use Mendeleev's periodic table to predict. Use Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table use Mendeleev's periodic table to predict the formulae for the oxides, to predict the formulae for the oxides of the following elements.
of the following elements. क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं? के, सी, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। ठीक है, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि एक बार मेंडलीव की जो हमने कल पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वो पीरियोडिक टेबल जरा देखिए। उसमें हमने सारा ना लिखकर तीन ही हम ग्रुप्स तक, तीन ही पीरियड्स तक हमने नोट करा था। तो सबसे पहले वो के पूछ रहे हैं, तो के देखिएगा, के चौथे पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट है के। तो चौथे पीरियड में सबसे पहला, हमने तीन ही लिखे थे ना, तो चौथे पीरियड में सबसे पहला है के। मैंने आपको बताया था कि के और कैल्शियम आप लिख लीजिए, के लिख लो और सी ए लिख लो। चौथे पीरियड में पहला एलिमेंट लिखो के, और फिर दूसरा लिख लो सी ए, कैल्शियम। इतना लिख लीजिए, इसके आगे में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिएगा, जैसे के है तो चौथे में सबसे पहला है, और अगर आप ऑक्साइड देखें सबसे ऊपर तो क्या लिखा हुआ है? R2O1, है ना। R2O1 यानी कि R2O। तो हम ये कहेंगे कि पोटेशियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। फिर कार्बन की बात करते हैं। हाँ जी, तो कार्बन आप देखिए ये आ रहा है सेकंड पीरियड में, चौथा ग्रुप, सेकंड पीरियड में चौथे ग्रुप में आ रहा है। ये दिखाई दे रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और फिर कार्बन, सेकंड पीरियड में है ये। तो सेकंड पीरियड में फोर्थ पोजीशन पर है। फोर्थ पोजीशन पर ऊपर आप देखिए क्या लिखा हुआ है? R2O4। R2O4 मतलब क्या हो गया? C2O4, 2 1 2, 2 2 4, मतलब ये आपका बन गया CO2। इसी तरह से एल्यूमिनियम पर आ जाइए, Al। तो Al देखिए कहाँ पर है? Al है थर्ड पीरियड में। अगर टेबल नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, मैं इधर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कि थर्ड जो पीरियड है, थर्ड पीरियड में तीसरे पोजीशन पर आ रहा है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, और अगर मैं तीसरे पोजीशन पर देखूँ एल्यूमिनियम जो आ रहा है, तो अगर मैं इसका ग्रुप देखूँ ऊपर, तो ऊपर लिखा हुआ है ऑक्साइड में R2O3। R2O3, तो R की जगह आपको Al लिख देना है, ये हो जाएगा Al2O3। फिर इसी तरह से सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन देखिए कहाँ पर है? सिलिकॉन है हमारा थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में चौथी पोजीशन पर है। और अगर मैं उसको देखूं तो वो है चौथी पोजीशन पर R2O4। तो Si2O4, तो 2 1 2, 2 2 4, ये क्या बन गया? SiO2। सिलिकॉन के बाद है बेरियम। तो बेरियम देखिए कहाँ पर है? सिक्स्थ पीरियड। बेरियम, हाँ बेरियम है आपका सिक्स्थ पीरियड में, बिल्कुल नीचे है बेरियम। तो सिक्स्थ पीरियड और सेकंड ग्रुप में अगर देखा जाए तो ऊपर है R2O2। R2O2, तो Ba2O2, BO। BaO हो जाएगा। 2 1 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया BaO। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है, अच्छा जनरली अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा, मतलब मान लीजिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पर क्वेश्चन आता है, तो पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में मिलती है। मतलब उसके लिए टीचर ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो। वो ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि शुरुआत के 20 एलिमेंट्स आपको याद हो, लेकिन सारे के सारे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जो हमने ये देखा है, तो इसके लिए ये मत सोचना कि अरे पीरियोडिक टेबल में सारी की सारी बैठकर रटनी पड़ेगी, तो वो सारी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया, डॉबरीनर्स ट्रायड हो गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्रेजेंट बेसिस मतलब आज जो है, आज जो हम पढ़ाई करेंगे, तो उसमें आप ये देखिएगा मेंडलीव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डॉबरीनर, ये सारे के सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। लेकिन सिलेबस में है, इन पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने करा। लेकिन अब हम प्रेजेंट बेसिस यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आएंगे। तो आज किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा जाता है वो देखना है।
डालेंगे प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Present basis for the classification of elements। लिखिएगा प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Present basis for the classification of elements, for the classification of elements is the atomic number of elements। Is the atomic number, present basis for the classification of elements is the atomic number of elements। तो एटॉमिक नंबर को आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर को एक बेसिस लेकर चलती है। जैसे अब से पहले एटॉमिक मासेस को लेकर चला जाता था। एटॉमिक मासेस यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज करा जाता था इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो अब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाने लगा इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ऐसा क्यों किया जाने लगा? ऐसे थोड़ी कि वैसे ही। इसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से कुछ जो पुरानी लिमिटेशंस थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, वो सॉल्व होती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो नोट करें आप इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिमिटेशंस। देखिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द limitations or explanation of the limitations or anomalies। anomalies मतलब वही limitations, कमियां, उनको anomalies भी बोल देते हैं। explanation of the limitations or anomalies of Mendeleev's classification of Mendeleev's classification of elements पहला है explanation for the position of isotopes। Explanation for the position of isotopes। Explanation for the position of isotopes। Since all the isotopes of an element have the same atomic number, have the same atomic number, comma, they can be put at one place
have the same atomic number, they can be put at one place in the same group of the periodic table. At one place in the same group of the पीरियोडिक टेबल। तो जब मॉडर्न बेसिस जो है, मॉडर्न बेसिस है ही एटॉमिक नंबर पर बेस्ड, तो एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स का सेम होता है, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो फिर आप जितने भी आइसोटोप्स हैं सबको एक ही जगह आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो जो एटॉमिक मासेस वाली प्रॉब्लम थी कि भाई क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एक का एटॉमिक मास तो 35 है, एक का एटॉमिक मास 37 है, तो दोनों को एक साथ क्यों रख रहे हो? भाई 35 वाला पहले रखो और 37 वाला उसके बाद में रखो, ठीक है। तो वो वाली जो प्रॉब्लम थी, वो वाली प्रॉब्लम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में दूर कर दी गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का बेसिस ही एटॉमिक नंबर है। वो कहते हैं एटॉमिक मासेस को हटाओ एक तरफ, सिर्फ हम तो एटॉमिक नंबर लेकर चलेंगे, हम तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो पहले जो है कम एटॉमिक नंबर वाला, बाद में उससे बड़ा वाला, बाद में उससे बड़े वाला, ऐसे हम लगाएंगे। तो जब आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर ही सेम होता है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो उनको एक ही जगह आप फिट करते चले जाएं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, आइसोटोप्स वाली जो प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व हो गई इससे, एटॉमिक नंबर वाला फंडा यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा सेकंड, एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल की पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। तो फिर इसमें है कोबाल्ट विद लोअर एटॉमिक नंबर कोबाल्ट विद लोअर एटॉमिक नंबर 27 शुड कम फर्स्ट should come first, and nickel with higher atomic number 28 and nickel with higher atomic number 28 should come later. Even if their atomic masses are in the wrong order, even if their atomic masses are in the wrong order. चाहे उनके जो एटॉमिक मासेस हैं, एटॉमिक मासेस ही भले ही क्यों ना रॉन्ग ऑर्डर में हो, लेकिन जो उनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को अगर ध्यान में रखा जाए तो एटॉमिक नंबर तो कोबाल्ट का 27 है और निकल का 28 है, तो कोबाल्ट पहले ही आना चाहिए और निकल बाद में आना चाहिए। तो कोबाल्ट और निकल वाली प्रॉब्लम भी इसने सॉल्व कर दी और आइसोटोप्स की जो पोजीशन है ये भी इसने सॉल्व कर दी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, ठीक है। ठीक है जी, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कल करते हैं, आज इतनी कर लीजिए। और सैटरडे को आपका टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट में मैं टॉपिक्स थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दो। मैग्नेटिज्म करवा दिया ना कंप्लीट, ठीक है। तो या छोड़िए, सुनिए, दोनों बैचेस का साथ साथ लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन, दो चैप्टर्स करते हैं, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन दोनों ही हो चुके हैं ना यहाँ तो चैप्टर्स। आपका इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बचा हुआ है ना, कोई बात नहीं, आप कार्बन वाला देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन तैयार रखना, टेस्ट देना है जरूर।
ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं? चलिए ठीक है।